नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर में आज मड़ीवाल माचीदेवा जयंती धूमधाम से मनाई गई। पूर्व विधायक राजशेखर पाटिल ने हमनाबाद इंडस्ट्रियल क्षेत्र से फैल रही जहरीली गैस पर रोक लगाने की अपील की। कर्नाटका में मेला ढोने की अनुमति नहीं, सीएम सिद्धरामैया ने दी सख्त कार्यवाही की चेतावनी। कर्नाटका राजभवन का कहना है कि कन्नड़ विधेयक वापस लौटाया गया, खारिज नहीं किया गया। हेमंत सोरेन को एक दिन की न्यायिक हिरासत, रिमांड पर कल फैसला। ईडी ने अरेस्ट करने की वजह कोर्ट को बताई। झारखंड में नई सरकार को लेकर सस्पेंस बरकरार, चंपई सोरेन को अब तक राजभवन से नहीं मिला न्यौता। अब समाचार विस्तार से। जिला प्रशासन द्वारा मड़ीवाल माचीदेव जयंती गुरुवार को मनाई गई। आज सुबह जिलाधिकारी कार्यालय से एक भव्य जुलूस निकाला गया, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए जिला रंग मंदिर पहुंचा, जहां पर माछा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद विभिन्न कार्यक्रम और संबोधन किया गया। इस मौके पर अधिकारी और समाज के प्रमुख आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಹಾಶರಣ ತ್ಯಾಗಮಯಿ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀರ ಗಂಟೆಯ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿ ತಂದೆಗಳ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಕೆಡಕಿದ ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ಅರ್ಬಿ ಕಟ್ಟಿದೆವು. ಅರ್ಬಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಾಬುರ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಯಾರ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಬಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪನವ್ರು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರೂ ಈ ಜಾಗ ಬಿಡಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂದರು. ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದಿಂದ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿ ತಂದೆಗಳು ನಿಂತಾರೆ. ಯಾರೇ ಬರಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದಿಂದ ಬರಲಿ, ಔರಂಗಾಬಾದಿಂದ ಹೋಗೋರು ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋರು ಇದ್ರು ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇವತ್ತು ನೀವು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಿಖ್ರು ಗುರುದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ. ಏ ಕೋನ್ಸಾ ಹೈ ಜಿ, ವಾಹೆಗುರು ಕಾ ಹೈ, ತಲ್ವಾರ್ ಹಾತ್ ಮೇ ಹೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿ ತಂದೆಗಳದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಮೆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿ ತಂದೆಗಳು ಇಷ್ಟು ಮೆರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಸತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಗರ್ವದಿಂದ ಹೇಳಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಅಂತ ಮಹಾನ್ ಶರಣರು ಅವರಾಗಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವಂತ ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಧುಮುಕ್ತಾರೆ, ಧುಮುಕಿ ಈಸಾಡ್ತಾರೆ, ಈಸಿ ಜಯಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಆ ಕಡೆ ನಿಂತವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಂತ ನದಿ ದಾಟಿದ್ರಿ ಶರಣರೆ, ಎಂತ ನದಿ ಭೀಕರವಾದಂತ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿ ತಂದೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ನದಿಯನ್ನು ಈಜ್ಬೇಕಾಗ್ಯದೋ ಸಂಸಾರ ಎಂಬ ಸಾಗರ ಈಜ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಈ ನದಿ ಎಲ್ಲ ದಾಟೋದು ಏನ್ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿದವರು ನಮ್ಮ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿ ತಂದೆಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಮುಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಬಂದವರ ಓಣಿ ಹತ್ರ ಗಂಟೆ ನಾದದೊಂದಿಗೆ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿ ತಂದೆಗಳು ವೀರ ಗಂಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಟೊಂಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗಿಸಿದ್ದಾರೆ? ವೀರ ಖಡ್ಗ ಸಿಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸಿಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಇವು ಎಡ್ಡು ಯಾಕವರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಂಗತಿ ಅಂತ. ಯಾವುದು? ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅದ, ಇದೊಂದು ಏನದ? ತಲ್ವಾರದ. ಯಾವ ಶರಣರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಲ್ವಾರಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿ ತಂದೆಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ತಲ್ವಾರ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿ ದೇವರು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪಾದ ಇಟ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಅದು ಬಂದವರ ಓಣಿ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಬಂದವರ ಓಣಿ ಹತ್ರ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿ ತಂದೆಗಳು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಶರಣರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಲ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶಿವದೋ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल ने आज गुरुवार दोपहर 12 बजे हुमनाबाद के औद्योगिक क्षेत्र में कारखानों से जहरीली हवा को रोकने की अपील की। भीमराव पाटिल और कार्यकर्ता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे। इस मामले में तहसीलदार अंजुम तबस्सुम और तहसीलदार मंजुनाथ पांचाल ने इस बारे में अपील की है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ಶಾಸಕರ ಕೈ ಚಳಕ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುತಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ್ನೂ ಗುರುತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ 1 ತಾಸಿಂದ 1.5 ತಾಸೊಳಗೆ ಈ ಹೋರಾಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು. ಬರೇ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ MLA ಚರ್ಮ ಬಹಳ ತಪ್ಪಿದೆ, MLA ಚರ್ಮ ಬಹಳ ತಪ್ಪಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅನ್ಯಾಯ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ. ನಮ್ದು ಯಾರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಏನೇನು ಹೇಳಿದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮ್ಯಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ, ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति हाथ से मैला ढोने का काम करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में कोई भी हाथ से मैला ढोने वाला नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह बात एक कार्यक्रम में बोलते हुए कही, जिसमें हाथ से मैला ढोने का काम करने वाले कुछ लोगों की पहचान की गई और उन्हें 40,000 रूपये का मुआवजा दिया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारी पार्टी के साथ साथ सरकार की भी प्रतिबद्धता है कि नागरिक कर्मचारी सम्मान के साथ रहे। इसलिए मैंने प्रमुख बनने के तुरंत बाद सफाई कर्मचारियों का वेतन 7,000 रूपये से बढ़ाकर 17,000 रूपये कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि यह हमारी सरकार है जिसने निर्माण श्रमिकों को घर बनाने के लिए 7.5 लाख रूपये की सहायता प्रदान करने की योजना लागू की है। मैंने मुख्यमंत्री के रूप में इन कार्यक्रमों को लागू किया। समाज कल्याण विभाग और कर्नाटका राज्य सफाई कर्मचारी विकास निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री HC महादेवप्पा, मालवल्ली विधायक नरेंद्र स्वामी, माया कोडा विधायक वसंतप्पा, नेलमंगला विधायक श्रीनिवास भी उपस्थित रहे। राजभवन ने स्पष्ट किया है कि वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए साइन बोर्ड पर 60% कन्नड़ भाषा को अनिवार्य बनाने के अध्यादेश को खारिज नहीं किया गया है, बल्कि विधेयक को मंजूरी के लिए राज्य विधानमंडल में पेश करने की सलाह के साथ सरकार को लौटा दिया गया। उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया, जबकि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि विधेयक सत्र में पारित किया जाएगा। R प्रभुशंकर द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि राज्यपाल ने खारिज नहीं किया है, बल्कि राज्य सरकार को केवल इस तरह के 7 अध्यादेश लौटाया है कि विधेयक को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष मंजूरी के लिए पेश किया जाए, क्योंकि दोनों सदनों को बुलाने की अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। जबकि CM और कन्नड़ और संस्कृति मंत्री शिवराज तंगदागी ने कहा कि वे विधेयक रखेंगे और इसे 12 फरवरी से शुरू होने वाले सत्र में मंजूरी दिलाएंगे। DCM ने राज्यपाल से अध्यादेश पर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। कन्नड़ वासियों के लिए भाषा एक भावनात्मक मुद्दा है। DCM ने कहा, न तो नागरिकों और न ही किसी राजनीतिक दल ने अध्यादेश के संबंध में कोई चिंता जताई है और इसीलिए मैं उनसे अध्यादेश पर एक बार फिर से पुनर्विचार करने की अपील करता हूं। बीजापुर के SP ऋषिकेश सोनवणे ने बताया है कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी किए गए मोबाइल जब्त किए गए हैं। विजयपुर शहर में आयोजित एक मीडिया सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिले के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में 4,58,500 रूपये मूल्य के विभिन्न कंपनियों के 25 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि चोरी हुए मोबाइल का पता CEIR वेबसाइट के जरिए लगाया गया। विजयपुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। CIR पोर्टल ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಆ CIR ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹೋದ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನ ಆದ ಮೊಬೈಲ್ ಅದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಓನರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 4,58,000 ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು 25 ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವುಗಳ ಓನರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ CIR ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಸಹ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಟ್ರೇಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ
ಆವಾಗ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಲಾಗ್ತದೆ. रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बृहस्पतिवार को यहां धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए अदालत में पेश किया। कोर्ट ने हेमंत सोरेन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने कोर्ट से सोरेन की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। अदालत रिमांड पर कल अपना फैसला सुनाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को बुधवार रात यहां उनके आधिकारिक आवास पर जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 7 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने भारी सुरक्षा के बीच सोरेन को यहां पीएमएलए अदालत में पेश किया। वहीं ईडी ने जांच से जुड़े कुछ रिकॉर्ड भी कोर्ट में पेश किए। ईडी ने कोर्ट को बताया कि 13 अप्रैल 2023 को छापेमारी में रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर भानु प्रताप प्रसाद के यहां बड़े पैमाने पर जमीन से जुड़े रिकॉर्ड रजिस्टर मिले। 1 जून 2023 को रांची में भानु प्रताप के खिलाफ रांची पुलिस ने केस दर्ज किया। इसके बाद 26 जून 2023 को रांची पुलिस की एफआईआर पर इस मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। जांच से पता चला है कि भानु प्रताप उस बड़े सिंडिकेट का हिस्सा था जो बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों की फर्जी सेल डील बनाकर रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेराफेरी कर जमीनों पर कब्जा करने में लगा था। झारखंड में हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा के करीब 18 घंटे बाद भी नई सरकार को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। झामुमो कांग्रेस आरजेडी गठबंधन विधायक दल के नए नेता चंपई सोरेन ने बुधवार की रात राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था, लेकिन इस पर राजभवन ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। सियासी उहापोहा की स्थिति के बीच गठबंधन के विधायक को हैदराबाद या बेंगलोर शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। बुधवार रात से ही रांची के सर्किट हाउस में रुके हैं 40 विधायक। सत्तारूढ़ गठबंधन के करीब 40 विधायक बुधवार रात से ही रांची के सर्किट हाउस में रुके हैं। उन्होंने कहा कि नई सरकार के गठन के साथ सभी विधायक एक साथ रहेंगे। चर्चा है कि नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रण मिलने तक इन्हें कांग्रेस शासित आंध्र प्रदेश या कर्नाटक में किसी रिजॉर्ट या सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इनकी शिफ्टिंग के लिए चार्टर्ड प्लेन हायर किया गया है, लेकिन रांची में सुबह से छाए घने कोहरे की वजह से प्लेन अब तक यहां के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आया नहीं है। प्लेन के पहुंचते ही विधायक बसों पर सवार होकर एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से हैदराबाद या बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। विधायक दल के नए नेता चंपई सोरेन सहित गठबंधन के 4-5 वरिष्ठ विधायक रांची में रहेंगे ताकि राजभवन की ओर से आमंत्रण मिलते ही तुरंत नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी हो सके। चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा करते हुए राज्यपाल को जो पत्र सौंपा है उस पर 43 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। 4 अन्य विधायकों यानी कुल 47 के समर्थन का दावा किया गया है। जिन 4 विधायकों के हस्ताक्षर पत्र में नहीं हैं, वे फिलहाल राज्य के बाहर हैं। राज्य में सरकार बनाने के लिए मैजिक नंबर 41 है। चंपई सोरेन ने कहा कि उन्हें राजभवन से बुलावे का इंतजार है। एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि राज्य में नई सरकार का गठन होने तक अल्पकाल के लिए राष्ट्रपति शासन लग सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के लोकसभा में बजट पेश करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस बजट से देश के विकास में रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह बजट देश, युवा, किसान, छोटे उद्योगपतियों और महिलाओं के लिए बेहद ही खास है। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक बजट साल 2047 तक देश को विकसित बनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बजट भले ही अंतरिम हो, लेकिन इससे आने वाले वर्षों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बजट का असर देश के अंतिम व्यक्ति तक देखने को मिलेगा। इस बजट से किसानों, युवाओं, छोटे और मझले उद्योगों, व्यापारियों और महिलाओं को फायदा पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य किसानों की आय को बढ़ाने को लेकर जो कि इस बजट में साधा गया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज का ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है।
पीएम मोदी ने कहा कि हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गांव और शहरों में गरीब के लिए हमने 4 करोड़ से अधिक घर बनाए और अब हमने 2 करोड़ और घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है, अब इसे बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है। मध्यम वर्ग के 1 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि आज जिस इनकम टैक्स की नई स्कीम की घोषणा की गई है, उससे मध्यम वर्ग के 1 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका रखी थी। उन्होंने कहा कि इस बजट में रिसर्च इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सरकार स्टार्टअप के हित में काम करने के लिए कदम उठाएगी। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कांग्रेस ने संसद की सुरक्षा चूक मामले के आरोपियों द्वारा कोर्ट के समक्ष किए गए दावे का हवाला देते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि विपक्ष के नेताओं को इस मामले में जिम्मेदार ठहराने की साजिश की जा रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सिम्हा की मदद से आरोपियों को संसद का पास मिला, लेकिन सिम्हा के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में गिरफ्तार किए गए 6 में से 5 आरोपियों ने बुधवार को एक अदालत को बताया कि दिल्ली पुलिस उन्हें विपक्षी दलों के साथ अपने संबंध स्वीकार करने के लिए कथित तौर पर प्रताड़ित कर रही है। 5 आरोपियों ने यह दलील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर के समक्ष दी। जज ने सभी 6 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 1 मार्च तक बढ़ा दी है। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, अपने अपराध को छुपाने के लिए विपक्ष पर झूठे आरोप लगवाना ही अहंकाराचार्य का तरीका है। ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को जेल में डालने वाली मोदी सरकार अब एक और साजिश रच रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के सिलसिले में एक रिटायर्ड चीफ इंजीनियर और एक ठेकेदार को गिरफ्तार किया। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रिटायर्ड चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा और ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय एजेंसियों ने इस मामले में पिछले साल जुलाई में छापे मारे थे। ईडी दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितता के 2 अलग अलग मामलों की जांच कर रही है। यह आपराधिक मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की एक एफआईआर और दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी की शिकायत से जुड़ा है। सीबीआई की एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर की आपूर्ति प्रतिस्थापना और परीक्षण करने के लिए कंपनी को टेंडर जारी करते समय एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को अनुसूचित लाभ पहुंचाया था। दूसरा आरोप नवंबर 2022 में दर्ज कराई गई एसीबी की शिकायत से जुड़ा है। यह दिल्ली जल बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं को बिल भुगतान की सुविधा देने के लिए अपने विभिन्न कार्यालयों में स्वचालित बिल भुगतान संग्रह मशीन कियोस्क स्थापित करने के लिए टेंडर प्रदान करने के मामले से जुड़ा हुआ है। बता दें कि पिछले साल जुलाई में ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली में कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। अमेरिका के एक हवाई अड्डे पर बड़ा हादसा होने की जानकारी सामने आ रही है। अमेरिकी राज्य इदोहा के बोइस में हवाई अड्डा मैदान में एक निर्माणाधीन स्टील का ढांचा बुधवार को ढह गया, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और अन्य 9 घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। बुधवार रात जारी एक बयान में कहा गया कि ढांचा ढहने से घायल हुए लोगों में से 5 की हालत गंभीर है। बोइस दमकल विभाग के संचालन प्रमुख अरुण हमिल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सूचना मिलने पर अधिकारी शाम लगभग 5 बजे घटनास्थल पहुंचे। बोइस हवाई अड्डे पर स्टील फ्रेम वाला ढांचा लगाया जा रहा था, जो ढह गया। हमिल ने कहा कि यह बहुत बड़ा हादसा था। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि इसका कारण क्या था, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि यह एक बहुत बड़ा हादसा था।
अधिकारियों ने कहा कि बोईस हवाई अड्डे के परिचालन पर कोई असर नहीं पड़ा। हमें ने कहा कि जिस समय ढांचा गिरा उस समय कुछ पीड़ित किसी ऊंची इमारत या अन्य ऊंचे मंच पर थे और उसके लिए कुछ विशेष बचाव प्रयासों की आवश्यकता थी। उन्होंने पुष्टि की कि घटना में एक क्रेन भी ढह गया। पाकिस्तान में जनता महंगाई से बुरी तरह से त्रस्त है। खाने पीने की चीजों के दामों से लेकर रसोई गैस और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। लेकिन चुनाव से पहले सरकार ने एक बार फिर आम आदमी की जेब पर डाका डाल दिया है। 8 फरवरी को चुनाव से पहले पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं। पहले से ही महंगे पेट्रोल से परेशान आम लोगों पर पेट्रोल की बढ़ी कीमतें पेट्रोल बम की तरह पाकिस्तान में अंतरिम सरकार ने आम जनता पर पेट्रोल बम फोड़ दिया है। बुधवार को पाकिस्तान की अंतरिम सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में 13.55 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। प्रति लीटर इस कीमत में बढ़ोतरी के बाद अब पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 272.89 हो गई है। इससे पहले यह कीमत 249.34 रुपए प्रति लीटर थी। वही हाई स्पीड डीजल यानी HSD की बात की जाए तो यह बढ़ोतरी 2.75 रुपए की है। इसी के साथ HSD के दाम अब 278.96 पहुंच गई है। हालांकि नए नोटिफिकेशन में लाइट डीजल ऑयल, केरोसिन तेल की कितनी कीमत बढ़ी है, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी पहले की अपेक्षा से ज्यादा है। उच्च अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और आयात प्रीमियम के कारण अगले पखवाड़े में पेट्रोल और HSD की कीमतें 5 से 9 रुपए प्रति लीटर बढ़ने की संभावना है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में आज मड़ीवाल माचीदेवा जयंती धूमधाम से मनाई गई। पूर्व विधायक राजशेखर पाटिल ने हमनाबाद इंडस्ट्रियल क्षेत्र से फैल रही जहरीली गैस पर रोक लगाने की अपील की। कर्नाटका में मेला ढोने की अनुमति नहीं, सीएम सिद्धरामैया ने दी सख्त कार्यवाही की चेतावनी। कर्नाटका राजभवन का कहना है कि कन्नड़ विधेयक वापस लौटाया गया, खारिज नहीं किया गया। हेमंत सोरेन को 1 दिन की न्यायिक हिरासत, रिमांड पर कल फैसला। ईडी ने अरेस्ट करने की वजह कोर्ट को बताई। झारखंड में नई सरकार को लेकर सस्पेंस बरकरार, चंपई सोरेन को अब तक राजभवन से नहीं मिला न्योता। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।